Hello everyone. Today we are going to learn about Tandon Committee. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने की प्रणाली में वांछनीय सुधार लाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे ऋण व्यवस्था का संवर्धन हो सके। केंद्रीय बैंक की हैसियत से रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का अंततः उद्देश्य यह रहा कि जो देश में ऋण आयोजन की व्यवस्था है वो स्थापित हो सके। प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद बैंक ऋणों को एक नई दिशा मिली और परिणाम स्वरूप प्राथमिक क्षेत्रों के जो अग्रिम है उसमें भी वृद्धि हुई। ऋण आयोजना एक कठिन कार्य है क्योंकि जो निधियां होती है उसकी मांग और पूर्ति में संतुलन की संभावना एक समस्या हो जाती है। वर्तमान प्रणाली की समीक्षा अगर की जाए तो उसमें इस तरह के संशोधन किए जाए जिससे कि उधारकर्ता को अपनी ऋण आवश्यकताओं की आयोजन बनाने की प्रेरणा मिले और बैंकर भी अपने उधारकर्ता की ऋण आवश्यकताओं के आधार पर अपने ऋण प्रदान आयोजना बनाने में सक्षम हो सके। रिजर्व बैंक ने जुलाई 1974 में श्री पी एल टंडन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसे बैंक आधार की अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए मार्ग निर्देश तैयार करने का काम सौंपा गया। In 1974, a study group under the chairmanship of Mr. P. L. Tandon was constituted for framing guidelines for commercial bank for follow-up and supervision of bank credit and ensuring proper end use of funds. The group submitted its report in August 1975, which came to be popularly known as Tandon Committee Report on Working Capital. Its main recommendations related to norms for inventory receivables and approach to lending, style of credit, follow up, and information system. It was a landmark in the history of bank lending in India. With acceptance of major recommendations by RBI, a new era of lending began in India. Terms of reference. The important terms of reference for the study group were as under: to suggest guideline for commercial bank for the follow-up and supervision of credit from the point of view of ensuring proper and use of fund and keeping a watch on the safety of advances, and to suggest the type of operational data and other information that may be obtained by banks periodically from such borrowers and by Reserve Bank of India from the lending banks, to make recommendation for obtaining from borrowers periodically forecast for business production plans and credit needs, to make suggestions for prescribing inventory norms for different industries both in private and public sectors, and indicate the board criteria for deviating from these norms, to suggest criteria regarding satisfactory capital structure and sound financial basis in relation to borrowings, to make recommendations regarding the sources of financing the minimum working capital requirements, and to make recommendation as to whether the existing pattern of financing working capital requirements by way of cash credit overdraft system, etc., required to be modified. If so, to suggest suitable modifications. Approach to lending, financing working capital gap, and bank credit. It should be expected to hold only a reasonable level of current assets in relation to the requirements of his production. The group defined the working capital gap as total current assets minus total current liabilities other than bank borrowings. The working capital gap could be breached partly from the own funds of the borrowers and long term borrowings, and partly through bank borrowings. It is also suggested that the bank must supplement the sources of the bank borrowers in order to enable the latter to carry an acceptable level of current assets. Following three methods in order to work out the maximum permission bank borrowing to meet the working capital gap. Work out first the working capital gap. The borrowers will have to contribute a minimum of 25% of working capital gap from the long term fund, that is equity or debt. In other words, the bank will finance a maximum 75% of the gap and the balance is to be met by the borrower. Minimum current ratio in this case will be 1:1. The borrower will have to provide a minimum of 25% of total current assets out of long term funds. Balance will be
Financed by other current liabilities. First, and then by bank credit. Total current liabilities must not exceed 75% of current assets. Minimum current ratio in this case at least will be 1.3 is to 1. The contribution made by the borrower from long-term funds must be the extent of the entire core current assets and a minimum of 25% of balance current assets. The balance left after being reduced by other current liabilities, if any, will be financed by bank credit. That is, the level of bank borrowing would be reduced in these stages and it will strengthen the current ratio. The study group submitted its final report in August 1975. After accepting the major recommendation made by the study group, the RBI advised the banks as under norms for inventory and receivable. The group suggested the norms in relation to raw material, stock in process, finished goods, and receivable and bill purchase on the basis of time element, that is, in term of month. These norms represent the maximum level of the holding inventory and receivables. Recommendation of Tandon Committee. Breaking away from the traditional method of the security oriented lending, the committee enjoined upon the bank to move toward need based lending. The committee pointed out that the best security of bank loan is a well functioning business enterprises, not the collateral. Norms for inventory and receivables. समिति ने अगस्त 1975 में अपना प्रतिवेदन दे दिया था तथा मुख्य सिफारिशों को स्वीकार करते हुए रिजर्व बैंक ने भी निम्नलिखित परामर्श दिया था। अध्ययन दल ने 15 प्रमुख उद्योगों के लिए मापदंड सुझाए थे। इन मापदंडों में ये बताया गया था कि प्रत्येक उद्योग में अधिक से अधिक कितना सूचीगत माल का भंडार किया जा सकता है और कितने प्राप्तव्यों का। अध्ययन दल द्वारा सुझाए गए तथा रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार किए गए मापदंड जो बताए हैं वो रिजर्व बैंक के मापदंडों को लागू करने के बारे में जो परामर्श दिया वो चाहिए कि सभी वर्तमान जो उधार करता है उसके मामले में चाहे वे उधार की सीमाएं बढ़ाने की मांग करें चाहे नहीं करें, यदि उनके सूचीगत माल भंडार और जो प्राप्तव्य स्तर है वो सुझाए गए मानदंडों के आधार पर अत्यधिक है तो इस मामले पर उसकी चर्चा करके उसकी चरणबद्ध तरीके से कमी करने का कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और ये मापदंड वर्तमान और नए दोनों उधारकर्ता पर तत्काल लागू किए जाने हैं। यदि सूचीगत माल भंडार और प्राप्तव्य के ये अत्यधिक बढ़े हुए स्तर बिना औचित्य के उसी प्रकार बने रहे तो बैंक को उधारकर्ता के खाते का प्रचालन अकस्मात रोक देना चाहिए क्योंकि उससे उधारकर्ता का सामान्य रूप से काम करना भी अव्यवस्थित हो जाएगा और उसके स्थान पर कुछ टाइम जैसे कि 2 महीने उसके बाद में बैंक ये विचार कर सकता है कि जो उधार की अत्यधिक राशि समझी गई है वह हिस्से में अधिक दर से ब्याज ले ले। बैंकों की उचित लोचशीलता और उन स्थितियों परिस्थितियों की सूझबूझ के साथ ही थोड़े समय के लिए मापदंडों से कुछ हटकर कार्यवाही करने की आवश्यकता पैदा होती है, नियंत्रण लागू किया जाना चाहिए और बैंक इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त जानकारी भी मांग सकता है। और आरंभ में लघु उद्योगों के सहित कई औद्योगिक उधारकर्ता को जिन्हें बैंकिंग व्यवस्था में कुल मिलाकर 10 लाख से अधिक उधार की सीमाएं मिली है वे मापदंड लागू होने चाहिए और 10 लाख रुपए या इससे कम की उधार सीमाओं वाले उधारकर्ता पर ये मापदंड यथासंभव थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए लागू होना चाहिए। जिन उद्योगों के लिए अध्ययन दल ने मापदंड निर्धारित नहीं किए उसके मामले में जो उधार सुविधाएं हैं वो बढ़ाते हुए समय और मानदंडों के उद्देश्य की भावना को ध्यान में रखना चाहिए। टंडन कमेटी ने बिजली उपकरण उद्योगों के लिए अलग से कोई मापदंड नहीं दिए, अतः जो मापदंड इंजीनियरिंग उपभोक्ता टिकाऊ सामान पर लागू थे वही इन पर लागू किए गए। लेकिन जो 1986 है उसके दौरान उप समिति की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक ने इलेक्ट्रिकल उद्योग के लिए सूचीगत माल भंडार और प्राप्त से संबंधित मापदंड मापदंड निर्धारित किए। सेकेंड अप्रोच टू लैंडिंग। उधार देने के प्रति जो दृष्टिकोण है, जहां तक उधार देने के प्रति बैंक के दृष्टिकोण का संबंध है, अध्ययन दल की ये राय थी कि जो उधार करता है उससे अपनी उत्पादन आवश्यकताओं की तुलना से जो चालू आस्तियां उसका एक युक्ति संगत स्तर बनाए
उसको रखने की आशा की जाती है कि जो कार्य संचालन है उसकी पूंजी की खाई को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि यह बैंक के लिए एक उधार धन के अतिरिक्त अन्य चालू देयताएं और कुल चालू आस्तियों में से घटा लेने के बाद करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज के बाद जो शेष बचा है वो उधारकर्ता की कार्यचालन पूंजी के अंतर को आंशिक रूप से अपनी निधियों और दीर्घकालीन उधार के से पूरा किया जा सकता है और बैंक की जो उधारकर्ताओं के संसाधन जो है उससे उसको पूरा करना चाहिए ताकि उसकी जो चालू अस्तियां हैं जो करंट एसेट्स हैं उनको एक स्वीकार्य स्तर पर रखा जा सके। ऊपर वाले दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अध्ययन दल ने 3 पद्धतियों का सुझाव दिया जिसमें यह आकलन किया जा सकता है कि जो वर्किंग कैपिटल है उसकी खाई को पाटने के लिए अधिक से अधिक कितने बैंक के ऋण की आवश्यकता होगी। ध्यान देने की बात यह है कि जो हर अगली पद्धति के उद्देश्य है कि दीर्घकालीन जो निधियां हैं लॉन्ग टर्म जो वो है उधारकर्ता को उसमें उसकी निधियां भी शामिल है उसके योगदान को निरंतर बढ़ाता जाए और अत्यधिक जो ऋण है उसकी जो करंट एसेट्स है उसका वित्त पोषण हो सके। इसमें 3 पद्धतियां कौन सी थी कि पहली थी कि बैंक कार्यचालन पूंजी की कमी का आकलन कर सकता है अर्थात कुल आस्तियों में से यानी टोटल एसेट्स में से करंट एसेट्स को घटाकर है ना जो बैंक ऋण है उसको छोड़कर वो उसको घटा सकता है और इस कमी के अंतर से 75% भाग की वित्त व्यवस्था वो स्वयं कर सकता है और शेष भाग पूर्व की जो पूर्ति है वो ग्राहक को अपनी निधियों से और उसके ऋणों से करनी होगी। उधारकर्ता को कुल चालू आस्तियों में से कम 25% भाग के लिए दीर्घकालीन निधियों की व्यवस्था करनी होगी लॉन्ग टर्म तथा अन्य जो करंट एसेट्स हैं अन्य देयताएं हैं जो करंट देयताएं हैं वो उधारकर्ताओं लायबिलिटीज जो हैं करंट लायबिलिटीज के लिए उधारकर्ता को निश्चित स्तर पर उधार उपलब्ध होगा और शेष धनराशि के लिए बैंक उपलब्ध करवाएगा। जो जो करंट लायबिलिटीज है उसमें बैंक से लिया गया उधार भी शामिल है और टोटल जो करंट एसेट्स है उसमें 75% से अधिक नहीं होनी चाहिए उसकी। और अगर ये स्थिति है तो कुल जो चालू आस्तियां हैं जो करंट एसेट्स है उसके मूल में चालू आस्तियां कोर करंट एसेट्स निकाल करके मूल चालू आस्तियों की जो वित्त व्यवस्था है वो दीर्घकालीन नीतियों से होनी चाहिए। जो करंट एसेट्स है उसमें से कोर करंट एसेट्स निकालने चाहिए और उसके जो बाद में बच रही है वो उसके लिए लॉन्ग टर्म निधियों से उसकी पूर्ति करनी चाहिए। पहली पद्धति में जो न्यूनतम चालू अनुपात है वो 1:1 होगा और दूसरी और तीसरी पद्धति में 1:3:1। इसमें अधिक ऊंचा चालू अनुपात मिलेगा 1.3:1। पहली वाली में तो 1:1 हो गया और दूसरी और तीसरी वाली में 1.3:1। प्रत्येक अनुगामी पद्धति का मंतव्य चालू जो करंट एसेट्स है उसकी वित्तीय व्यवस्था के लिए जो लॉन्ग टर्म निधियां हैं उसके योगदान को उत्तरोत्तर बढ़ाना है और बैंक के लिए ऋण का स्तर भी धीरे धीरे घटाया जाना चाहिए जिससे कि जो करंट रेशो है वो सुदृढ़ हो सके। बैंकों को पहले पहले तो प्रथम पद्धति लागू करने के लिए कहा गया था 1:1 वाली लेकिन सभी उधारकर्ताओं को सितंबर 1976 से इन सिफारिशों के अंतर्गत लाने को कहा गया। तीसरा स्टाइल ऑफ क्रेडिट। जो अध्ययन दल है उसने उधार देने की शैली में परिवर्तन करने की आवश्यकता का भी सुझाव दिया। अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुसार पूरी उधार सीमा को नकदी ऋण के रूप में देने के स्थान पर बैंक ऐसे उधार को दो भागों में बांट सकता है। एक तो ऋण अपने उधार की न्यूनतम स्तर शामिल हो और जिससे उधारकर्ता वर्ष भर में उपयोग में लाने की आशा करता हो और दूसरा मांग पर सुलभ नकदी जो वित्त है उसकी वित्त को घटने बढ़ने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। इन दोनों ही उधार सीमाओं की समग्र उपलब्धता को देखते हुए वार्षिक समीक्षा की जानी चाहिए और जो विनिमय पत्र हैं उनकी उधार सीमा भी सुलभ कराई जानी चाहिए। इस समिति ने यह भी सुझाव दिए कि जो पुस्तक ऋण है बुक डेट्स है उसके आधार पर नकदी उधार देने को की अपेक्षा प्राथमिकता विनिमय विपत्र के आधार पर वित्त व्यवस्था की जानी चाहिए कैश की बजाय बिल जो कि विक्रेता से जो प्राप्तव्य आधार पर सुलभ कराई जा सके और उधार देने की जो प्रस्तावित प्रणाली है वो उधारकर्ता की विस्तारित की जानी चाहिए जिससे कि बैंक प्रणाली में 10 लाख रुपए या अधिक से उधार सीमा उपलब्ध होती है तो उसके पश्चात अन्य उधारकर्ता को भी इसे उत्तरोत्तर लागू किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है डिफरेंट लैंडिंग इंटरेस्ट रेट। बैंक ऋण का उपयोग करने में अनुशासन लाने की दृष्टि से अध्ययन दल ने उधार के उन संगठनों की अपेक्षा जो ऋण के रूप में दिया जाए उसकी मांग को
इजीली कैश ऋण के रूप में दिया जाए, जो थोड़ी बहुत ऊंची ब्याज दर भी सुझाई। इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा कि अध्ययन दल के उधार संबंधी मापदंडों की क्रियान्विति के संबंध में उधार एक विभेदक ब्याज दरें लगाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह भी निर्देश दिया कि ऋण रूप में दिए जाने वाले जो उधार है, उस पर जो ब्याज दर ली जाए वो मांग पर सुलभ नगद ऋण के लिए उसमें 1% दर ज्यादा ऊंची हो, उससे 1% ज्यादा ब्याज लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जो आवधिक ऋण है उस पर भी जो भी अत्यधिक दिए गए हैं वो उधार की वह राशि है जिसको परिशोधन किया जाना चाहिए, और नकदी ऋण की तुलना में आधा प्रतिशत ऊंची दर से ब्याज लिया जाना चाहिए। बैंकों से यह भी अपेक्षा की गई कि उस समय से विभेदक ब्याज दर लगानी चाहिए जब से कि उधारकर्ता के खाते उपयुक्त बताए गए तरीकों से विभाजित किए गए हों, या उधारकर्ता द्वारा उधार सीमा बढ़ाए जाने की मांग आने के मामले में उसे अतिरिक्त उधार सीमा देने का निर्णय किया गया हो। इंफॉर्मेशन सिस्टम, अध्ययन दल ने बैंकों के द्वारा अपनाए जाने के लिए एक सूचना प्रणाली भी तैयार की, और अध्ययन दल ने इससे भी सिफारिश की थी कि जो उधार करता है वो पूरे वर्ष के लिए एक प्रचालन विवरण और फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रस्तुत करे, और उसके साथ ही आगामी वर्ष के अंत में स्थिति दर्शाने वाला एक बैलेंस शीट भी प्रस्तुत करे। यदि जो जो आंकड़े हैं वो 10% अधिक का कोई महत्वपूर्ण अंतर है, तो बैंकर की जो पूर्व स्वीकृति ली जाए, वो स्वीकृति सीमाओं के भीतर ही वास्तव में कितना धन लिया जाए, और ग्राहक के त्रैमासिक जो फंड फ्लो विवरण है ना, उसके आधार पर होगा, और किस स्तर पर धन निकालने की अनुमति होगी, ये जो पूर्ववर्ती तिमाही है ना उसके अंत में आने वाले स्तर, और फंड फ्लो विवरण में दर्शाए गए घाटे या आधिक्य को उसमें घटाकर या जोड़कर निकाली गई राशि होगी। फॉलो अप एंड सुपरविजन, रिजर्व बैंक उधार के विषय में अनुवर्ती कार्यवाही और जो पर्यवेक्षण संबंधी बैंक की प्रणालियां हैं उनकी पद्धतियों को गतिशील बनाए रखने के लिए एक सुनिश्चित किए जाने वाले काम को भी उधार दिए गए धन का सही उद्देश्य में प्रयोग हो उस पर ज्यादा महत्व देता है। उनकी विभिन्न प्रकार की शर्तें थी इसमें, निबंधन की शर्तें थी, वित्तीय अनुवर्ती की कार्यवाहियां थी, माल भंडार संबंधी विवरण था, और फिर है नीड फॉर गियरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप सेटअप है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को ये याद दिलाया कि जो अध्ययन दल है वो किस प्रणाली की सिफारिशें की हैं। दूरगामी प्रभाव होंगे और वो तब तक सफल नहीं होगी जब तक कि हर बैंक अपने जो टॉप मैनेजमेंट तक नए दृष्टिकोण से इसके प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध नहीं होगा। और नॉर्म्स फॉर ट्रेड, व्यापार का वित्त व्यवस्था करते समय बैंकों को अन्य बातों के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो उधार करता है उसकी स्वीकृति की गई उधार सीमाओं के संबंध में उधारकर्ताओं के पास अपने पास कितनी निधियां हैं और वार्षिक कुल बिक्री कितनी है, इनके बेस पर ही उसको माल के लिए वित्त व्यवस्था से बचना चाहिए जिसे पहले से उधार पर प्राप्त किया गया हो। नॉर्म्स फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर, यद्यपि ऋण और पूंजी का अंतर डेब्ट इक्विटी रेशियो में कोई भी ऐसा कोई मापक नियंत्रित करना व्यवहारिक नहीं है, लेकिन ये समझा जा सके कि कोई भी फंडेड जो डेब्ट है और पूंजी के बीच में संबंध की कुल टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज और इक्विटी रिलेशनशिप को व्यक्त करते हैं। परंतु बैंकर को यह चाहिए कि वे उधारकर्ता को यह बुलाने या समझाने का प्रयत्न करे कि उद्योग के माध्यम तक पहुंचने के लिए यथासंभव शीघ्र एवं पूंजी को मजबूत करना आवश्यक है। फिर है नीड फॉर इंटरबैंक कोऑपरेशन। भारतीय रिजर्व बैंक ने उधारकर्ता के कई बैंकों के साथ व्यवस्था होने की स्थिति में बैंकों की परस्पर बची हुई सहकारिता और तालमेल रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया, और ऐसे मामले में मूल्यांकन और प्रचालन तकनीक जैसी रिपोर्ट भी सुझाई। और इस प्रकार अध्ययन दल ने अन्य सिफारिशें भी प्रस्तुत की थी कि विभिन्न फर्मों की परस्पर तुलना की जा सके, माल भंडार का मूल्यांकन और सत्यापन, उधारकर्ताओं का वर्गीकरण और प्रबंधकीय सक्षमता। Direction and advice by RBI. The RBI advised the scheduled banks to regard to the implementation of these norms which are as under. These norms are applicable in case of both the existing and new borrowers with immediate effect. All fresh proposals, including those from the existing borrower seeking enhanced credit facilities, may be regulated by these norms. In case of all existing borrowers, whether or not they seek enhancement in credit limits in their
inventories and receivable level and excessive on the basis of suggested norms. The matter should be discussed with them and program for the phased reduction may be work out. In case the excess level of inventories and receivable continue without the justification, the bank must be abruptly stop operation in the account of the borrower since it may be set up these norm functioning. In this case, the bank must consider after reasonable period of time, say about 2 months, whether it should be charged a higher rate of interest on proposal of the borrowing, which is considered to be excessive. The bank should exercise control with due flexibility and understanding of circumstances which may warrant deviation from the norms for temporary period. The bank may call the additional information from this purpose. At the initial stage, all industrial borrower, including small scale industries with aggregate limits from the banking system in excess of rupees 10 lakh should be covered. Borrowers with aggregate limit of rupees 10 lakh or less should be covered progressively as early as possible. That's all for today. It is all about Tandon Committee report. Thank you everyone.